Hello YouTube. So today the date is 18th of December 2025. Oh, I'm so glad that I mentioned the date correctly in first go. पता नहीं कैसे यार मैं डेट ही गलत से ही शुरू करता हूँ क्या होगा anyway so we are in the fifth week of our UPSC prelims preparation and first 3 weeks was for eco and we are in the polity week right now. Fourth was polity, fifth is almost over, and one last week for polity, correct? So if we move to the test discussion part, yesterday we did active recall for cabinet committees, and day before yesterday we did active recall for parliament and state legislature. Oh, I forgot to erase them. I will erase. So the cabinet committees part was left in day before yesterday's video, so I thought that yesterday I'll just cover this, and I covered this. And in today's test it was state legislature and cabinet committees, तो उसका ये स्कोर है। अरे एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सारथी हर टेस्ट में सिर्फ दो ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब फैक्चुअल इन द सेंस कि इस पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर द ब्लंट फैक्ट्स। तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हर टेस्ट में दो अनअटेम्प्टेड हो जाता है मेरा। तो या दैट इज द केस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि सारथी इज स्टिकिंग विथ conceptual questions. I hope कि UPSC also does the same because factual questions यार याद करना बहुत difficult लगता है मुझे, and I hope कि UPSC also sticks to this. Okay, so without further ado, let's quickly move to today's topic, that is Supreme Court and High Court. So we are here in the judiciary topic, and judiciary is a very big topic. And in judiciary, we study about Supreme Court, High Court, also subordinate judiciary, tribunals, Lok Adalat, so many more things, right? ADR is also there, alternative dispute resolution mechanism. All these are there, correct? So for tomorrow's test, the syllabus is this: Supreme Court and High Court. So we'll quickly try to revise Supreme Court and High Court. Okay, and please remember one thing, that this is not a professional teaching video. This is just part of my active recall schedule for my daily routine, and whatever I study in the whole day for tomorrow's test, I just try to actively recall them, and I just record that and post it publicly, which I also can use for later use, correct? So this is the usual disclaimer, and please don't take it a professional teaching video because I can't dare to teach polity in the same universe where Mathur sir exists, correct? So it's not my like capability. So I am here just to revise things for myself and for you guys. Okay, so let's quickly move to today's discussion. Just give me a couple of, not couple, maybe couple is not in our destiny. Just give me few seconds. Let me quickly erase this, and I hope that you guys are doing well in your studies. And so yeah, so let's quickly start with the primary structure, how our judiciary is structured. So above all, this is Supreme Court, correct? This is also known as apex court. After that we have high courts, correct? And some high courts are even older than Supreme Court. Okay, so this is the trivia. Okay, these two are these two are I'm very sorry. So these two are part of higher judiciary, correct? Is very important to understand that Supreme Court and High Court are both higher judiciaries. So we can conclude one thing from this, that whenever we study about writs, like writs of prohibition, we know writ of prohibition, correct? Where higher judiciary restrict lower judiciary from conducting a certain case, correct? So can Supreme Court issue a writ of prohibition to High Court? What do you guys think? So the answer is no, because both of them are higher judiciary. The writ can be issued
from higher judiciary to lower judiciary like district court and all. ठीक है, तो ये चीज गलती नहीं करना हमें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, these are both higher judiciary, correct? This is a very important concept. After that what we have is subordinate judiciary. ठीक है, after that we have subordinate judiciary, and in subordinate judiciary we have like session court. ठीक है, session court we have, that is your criminal court. Also we have district court, that is your civil in nature. And after that we have additional session judge, chief judicial magistrate. So this is the basic structure, correct? So if we quickly move to the judges part, ठीक है, जजेस पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का क्या अपॉइंटमेंट होता है, क्या वोट होता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन जुडिशियरी, करेक्ट? तो हियर वी राइट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. एंड इन सुप्रीम कोर्ट इफ वी सी दैट सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ऑफ कोर्स president will appoint, and he or she will consult Supreme Court and High Court judges for appointment of a Supreme Court judge, and it is mentioned in the constitution. So if in this case we get a question like this, that according to constitution president will consult Supreme Court and High Court judges before appointing a Supreme Court judge, the statement will be absolutely correct. ठीक है, मोस्टली जगह पे ये चीज नहीं एप्लीकेबल होता है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली यूपीएससी ऐसे फ्रेम करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा हो. बट इन दिस केस, in this particular case, you should keep in mind that this statement will be correct. And in case of high court, the president will straightforward appoint high court judge. This is also mentioned in the constitution of India अंडर आर्टिकल 217. ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है. और ये जो कंसल्टेशन वाला पार्ट है, ये चीज आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है फॉर हाई कोर्ट. तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट के लिए ये चीज मेंशन किया हुआ है, और हाई कोर्ट के जज में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, इफ वी क्विकली कम टू oath is given in third schedule and of course by president, and this is given in third schedule and of course by governor. So you should remember that high court judges are appointed by president, but oath is given by the governor, because it's not practically possible to go to different state high court for the president and give oath to the judges. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है. ठीक है, also if we quickly come to chief justice, so for chief justice of India, that is for Supreme Court, that is senior most. ठीक है, बट आपको ये चीज याद रखना है कि दिस इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ओनली बाय कन्वेंशन कि चीफ जस्टिस जो होंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल ऑलवेज बी द सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज बाय कन्वेंशन. ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ही इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ द रोस्टर. ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं. ऑल्सो ही एलोकेट्स केसेस, बेंचेस, एंड ही इज बेसिकली द हेड ऑफ द administrative head of the Supreme Court. He is also known as master of roster. ठीक है, also in this case chief justice of high court is also senior most by convention. ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद अगर जजेस में हम लोग देखें तो जजेस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो बेसिकली कॉलेजियम से होता है. ठीक है, and one more important point to remember is that the collegium is not a constitutional mandate. This is a judicial invention. ठीक है, तो हमारे बहुत सारे फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, ये सब हुआ था. सो फ्रॉम देम द थर्ड जज केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर अस. थर्ड जजेस केस. ठीक है, थर्ड जजेस केस में क्या हुआ था कि इससे ये हुआ था आप लोग का 1998 में. ओके, 1998 में थर्ड जजेस केस में क्या हुआ था डिसाइड कि जो कॉलेजियम बनेगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, एससी जजेस. ठीक है, तो ये जो 5 जन का जो आपका कॉलेजियम बना ना, 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको मिलके आपका कॉलेजियम बना. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम. ठीक है, कॉलेजियम बोलते हैं हम लोग ये पूरा चीज को. ठीक है, और फिर ये बताएंगे प्रेसिडेंट को कि कौन सा हमें जज चाहिए, कौन हमें हाई कोर्ट से जज चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ जाए. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस.
ऑल्सो फोर्थ जजेस केस में क्या हुआ था कि हमने एक नेशनल जुडिशियल सर्विस करके ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है, एनजेएसी करके कुछ। तो इसमें 2014 में फ्रॉम 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने ये बनाया था, पर फोर्थ जज जो केस हुआ था 2015 में, उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। और अभी भी जो चलता है वो थर्ड जज केस के अकॉर्डिंग जो कॉलेजियम स्टैब्लिश किया था हमने, वही अभी भी चलता है, ठीक है। ऑल्सो you have to remember one thing that for high court the collegium is a bit different. The collegium for high court is CJI plus two senior सुप्रीम कोर्ट जजेस ओनली, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जज आ जाएंगे कॉलेजियम में, इनका भी कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट जज ही होंगे, पर दो होंगे, इसमें चार थे इसमें दो होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होगा ही होगा, ठीक है। ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि जजेस के लिए कॉलेजियम चाहिए, चीफ जस्टिस के लिए कोई कॉलेजियम नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए हमें बस सीनियर मोस्ट को ले लेना है, ठीक है। यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसमें बहुत स्लोली जा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप सिर्फ ये चीज भी समझ जाओ ना वीडियो देख के, तो ये चीज आपका एकदम सिक्योर हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट इफ वी क्विकली मूव टू क्वालिफिकेशन, तो सिटीजन वाला क्वालिफिकेशन तो हमारा होगा ही, हम लोग क्यों किसी फॉरेनर को हम लोग का अपना जज बनाएंगे। सिटीजन विल बी द क्वालिफिकेशन फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग का जो पहला क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए हाई कोर्ट जज फॉर 5 और मोर, ठीक है। या तो 5 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट के जज हो, या तो उससे ज्यादा के लिए हो, तो भी हम लोग वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद और लगेगा बीच में, ध्यान रखना है, ये सारा जो इसके बाद लिखूंगा मैं क्वालिफिकेशंस, वो सारा रिक्वायर्ड नहीं है, और कोई एक होने से भी होगा, ठीक है। उसके बाद वाला जो और वाला जो प्रोविजन है, हाई कोर्ट लॉयर होने से भी होगा फॉर 10 और मोर ईयर्स, ठीक है। या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए जज बन जाओ, या तो आप हाई कोर्ट में 10 साल या उसके ज्यादा के लिए लॉयर रहो, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। और इसमें भी आपका क्या है कि जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, या तो आप कोई जुडिशियल ऑफिस हो आपका, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 और मोर, और इसमें भी आपका और आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी आपका और आ जाएगा। और इसमें जो हाई कोर्ट जो लॉयर वाला है, ये आपका सेम ही है क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि वी हैव वेरी exactly same eligibility for a Supreme Court and a High Court judge. So we can conclude that High Court and Supreme Court are both higher judiciary, except and they are also they also hold similar powers, almost similar powers, except in some cases like center state dispute, inter state dispute। अगर अभी वेस्ट बंगाल और बिहार में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, ठीक है। या फिर इंडियन गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो भी इसको सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। ऐसे ही दो चार और चीजें जिसमें सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, बट बाकी ऑलमोस्ट सारे चीजों में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव सिमिलर पावर्स। इवन हाई कोर्ट कैन गिव डिसीजंस और जजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएलिटी, ठीक है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, हर चीज में इन दोनों का पावर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर बोथ एग्जैक्टली सेम, तो दोनों एग्जैक्टली सेम तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। ऑल्सो इनका कोई मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में 35 ईयर्स होना चाहिए, लोकसभा एमपी और स्टेट लेजिस्लेटिव एमपी के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए, ऐसा कोई जजेस के लिए नहीं है, ठीक है, नो मिनिमम एज। बट आप देख ही सकते हो कि काफी सीनियर हो ही जाएंगे ये लोग एज में, क्योंकि इतना टाइम अगर वो लोग सर्विस करेंगे बाकी जगह पे तो एज तो हो ही जाएगा, ठीक है। ऑल्सो रिटायरमेंट एज अगर हम लोग देखें, रिटायरमेंट एज इज 65 ईयर्स, ठीक है, 65 ईयर्स फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 62 ईयर्स फॉर हाई कोर्ट। ऑल्सो अगर रिटायरमेंट हो जाते तो ये फिर कोई भी कोर्ट में आफ्टर दैट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी सेम है कि कांट प्रैक्टिस इन सेम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, पर उससे नीचे नहीं कर सकते, मतलब सेम हाई कोर्ट या फिर इससे नीचे वाला कोई लोअर कोर्ट में नहीं कर सकते, दूसरे हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट इफ यू कम टू द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनका जो सैलरी और पेंशन होता है सुप्रीम कोर्ट जजेस का, ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, और इनका जो होता है, इनका सैलरी होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, पर पेंशन जो होता है वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, ठीक है। ये हो गया पेंशन का, ये हो गया सैलरी का, और इनका सैलरी प्लस पेंशन दोनों ही कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, ठीक है। ये भी हो गया हम लोग का क्लियर।
उसके बाद अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखें सुप्रीम कोर्ट का अगर स्ट्रेंथ देखें हम लोग, तो इट्स 34 जजेस, ठीक है, मैक्सिमम 34 हो सकता है, इंक्लूडिंग सीजेआई, ठीक है, और पार्लियामेंट बाय लॉ इसको ऑफकोर्स बढ़ा सकते हैं। और इसके केस में आपका कोई भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है पर हाई कोर्ट में, ठीक है, इसमें कोई मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल्सो वैकेंसी कैसे होगा, वैकेंसी करना थोड़ा इनका डिफिकल्ट है। एक तो ये रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट को, या तो अगर रिमूवल करना हो तो प्रेसिडेंट इनको रिमूवल करेंगे, पर एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस होगा, ठीक है, जिस प्रोसेस का ग्राउंड ये होना चाहिए कि प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यही दो रीजन से आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा वो आपका जो मोशन होगा, ठीक है। और जो भी मोशन होगा वो कोई भी हाउस कर सकती है, पर उसके लिए आपको 100 लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और 50 राज्यसभा मेंबर का सपोर्ट चाहिए, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे उनको वो मोशन एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो एक्सेप्ट करना होगा इन द सेंस अगर रिमूवल करवाना हो तो एक्सेप्ट करना होगा, वो उनका डिस्क्रिप्शन है काइंड ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, ठीक है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि बहुत सारे केसेस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन है, जैसे एंटी डिफेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन है। ऑल्सो ऐसी बहुत सारी चीजें अभी मुझे एट द मोमेंट याद नहीं है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन विथ ऑलमोस्ट दिस थिंग्स, ठीक है। ऑल्सो इसके बाद अगर देखेगी प्रिविलेजेस क्या है, तो प्रिविलेजेस तो एमपी को मिलते हैं, एमएलए को मिलते हैं, इवन प्रेसिडेंट को मिलते हैं, आईएएस आईपीएस को मिलते हैं, तो जजेस को तो ऑब्वियसली मिलेंगी। तो सबसे पहला जो आपका प्रिविलेज है कि नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी जज फॉर एनीथिंग डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी, ना ही सिविल ना ही क्रिमिनल, ठीक है। अगर ऑफिशियली वो लोग कुछ करते हैं तो उसके लिए आप कोई भी उनके लिए कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अ सिटिंग और एक्स जज, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग सपोर्टिंग जजेस का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ये सब अगर हम लोग देख ले, तो एक होता है आपका एडहॉक जजेस, ठीक है। एडहॉक जजेस ये क्या होता है कि ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आर्टिकल 127 के अंडर अगर आपको शॉर्टेज होता है सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस का, तो आप एडहॉक जजेस ले सकते हो। इनका एलिजिबिलिटी ये कि या तो ये सिटिंग हाई कोर्ट जज हो, ठीक है, इनका सिटिंग हाई कोर्ट जज होना इंपॉर्टेंट है, और वो क्वालिफाइड हो एससी जज होने के लिए, ठीक है। ऑल्सो स्टेटस सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। पीरियड ऑफकोर्स टेम्पररी, जितने टाइम के लिए आपको चाहिए उतने ही टाइम के लिए। और प्रोसेस क्या होगा कि प्रेसिडेंट का कंसेंट होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट का कंसल्टेशन होना चाहिए। मान लो आप कैलकाटा हाई कोर्ट से किसी को ले रहे हो, तो उनका जो चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको रिक्वेस्ट करना होगा राइटिंग में, ठीक है, फिर ही ये चीज हो पाएगा लॉट। उसके बाद जो रिटायर्ड जजेस हैं वो आपका आ जाता है आर्टिकल 128 के अंडर, ठीक है। रिटायर्ड जजेस में क्या है आपका प्रोविजन कि कोई रीजन स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रीजन स्पेसिफाइड नहीं है। ये एक्स सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है या फिर एक्स हाई कोर्ट जज भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं, एक्स हाई कोर्ट जज भी हो सकते हैं, और सिमिलर बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। टेम्पररी पीरियड के लिए तो होंगे ही ऑफकोर्स। सिमिलर बेनिफिट जजेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसको मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसलिए मैंने पॉज लिया। इसको एक बार देखना होगा, चेक करना होगा, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना कि स्टेटस क्या होगा रिटायर्ड जजेस आएंगे तो, ठीक है। ऑल्सो प्रोसेस वही होगा कि सीजेआई प्रेसिडेंट के कंसेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि वी आर डन विद दिस। और यही अगर एडहॉक हम लोग देखेंगे तो आपका हाई कोर्ट के लिए 224 ए जो आर्टिकल है, ये ही आपका एडहॉक हाईकोर्ट जज का होता है, ठीक है। स्पेसिफाइड रीजन इसमें भी दिया हुआ नहीं है, और ये हाईकोर्ट जज एक्स हाईकोर्ट जज ही होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। ऑल्सो एक एडिशनल और एक्टिंग जजेस का भी कंसेप्ट आता है आपका हाईकोर्ट के लिए, 224 क्लॉज 1 और 224 क्लॉज 2 में आता है आपका ये चीज। तो ये चीज भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इतना डिटेल में मैं नहीं कर रहा हूँ उसको कवर, थोड़ा सा लेंदी है ये चीज, ठीक है। ऑल्सो इफ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट कि जैसे कि अगर हम लोग एक बार पावर और पोजीशन अगर एक बार देखें, तो हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट हायर सुप्रीम कोर्ट बेंचेस।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस पे मैंडेट वो नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट हायर सुप्रीम कोर्ट बेंचेस, मतलब हायर बेंचेस पे वो आपका जजमेंट बाइंडिंग नहीं है। वरना तो फिर सुप्रीम, आपने पढ़ा होगा ना पहले कि सांकरी प्रसाद का कोई केस हुआ, फिर वो केशवानंद भारती में जाके चेंज हो गया। तो अगर बेंच का साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। ऑल्सो ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज shall assist the Supreme Court. Supreme Court has superintendence over all courts, ये सब आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब उनका सारा जजमेंट वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक कंसेप्ट होता है कि अगर आप कोर्ट को ओबे नहीं करते तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पे लग सकता है, जिससे आपको कुछ पनिशमेंट हो। ऑल्सो कोर्ट कैन आउटसाइड कोर्ट में भी ले सकते हैं। शुओ मोटो कॉग्निजेंस बहुत जगह पे लिया जाता है, जैसे आर्टिकल 32 और 129 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट लेती है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। आपको अगर याद होगा कि लास्ट ईयर, या हाँ लास्ट ईयर ही शायद, कि कोलकाता में जो केस हुआ था मेडिकल कॉलेज में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था, ठीक है। मतलब केस बिना फाइल हुए भी सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में कोई केस को ले सकती है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ऑल्सो केस अलॉटमेंट तो मैंने बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं और वही लोग अलॉट करते हैं, ठीक है। ऑल्सो दो चार इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैव आर लेफ्ट बिफोर आई कंक्लूड द वीडियो। एक होता था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज नथिंग बट कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है रिगार्डिंग रिट्स, तो 32 में जो रिट्स आता है ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। ऑल्सो सेंट्रल स्टेट के कोई मैटर हो, सेंट्रल स्टेट के मैटर में आपका जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। ओरिजिनल मतलब ये होता है कि आपका मतलब आप पहला जो मतलब कोई भी केस के रिगार्डिंग आप पहले अगर किसी को रीच करते हो तो आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। तो वही चीज है। या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि बाकी सारे मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है, बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होता है वो कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट जज देखते हैं। तो वो भी आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे और भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मैं बस आपको कंसेप्ट बता दिया। बाकी जो फैक्चुअल इसमें चीजें हैं वो आपको खुद पढ़ना होगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं हो सारी चीजें, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। ऑल्सो अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है कि आपको मान लो हाई कोर्ट में आपको कोई जजमेंट मिला तो उसमें आप उसके रिगार्डिंग कोई आप अपीलेट करो सुप्रीम कोर्ट में, अगर अपील करना चाहो तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हाई कोर्ट को एक फिट फॉर अपील सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। उसका एक एक्सेप्शन है कि आर्टिकल 134 में ये नहीं चाहिए होता है, ठीक है। पर बाकी हर केस में आपको हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देंगे, आप तभी उसको लेके अपील कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट ऐसा समझे कि इस केस में और अपील करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हाई कोर्ट का केस को सुप्रीम कोर्ट का केस में अपील कर सकते हो। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर बोथ हायर जुडिशियरी। आप किसी को एक दूसरे से कम मत समझो। इन जनरल कोई पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से कम हो, पर कोई भी इन जनरल आप उनको नहीं बोल सकते हो, उनका कोई हायरार्की नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेके हमने मोस्टली चीजें कवर कर लिया है। अब जो हम लोग का बचा है वो मैं क्विकली एक बार आपको सिलेबस देख के बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो बचा है वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या क्या चीजें आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ग्राम न्यायालय क्या है, नालसा सालसा आपने सुना होगा, फ्री लीगल एड वाला कंसेप्ट, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू क्या है, ट्राइब्यूनल्स क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ये सब मैं कल के वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए हम लोग का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही सिर्फ है, ठीक है, सिलेबस में कल के टेस्ट के लिए। तो बस इतना ही मैंने एक्टिव रिकॉल कर लिया है। सो आई थिंक कि वी शुड कंक्लूड द वीडियो हेयर एंड या हैव अ गुड डे। प्लीज टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।